Hello, everyone. Welcome to Career Launcher and welcome for a new journey, a new segment of Modern Maths. As I promised last time we concluded with numbers. So today we'll initiate with PNC and probability, combination. So we are going to build our basics today on this topic. The topic is permutation and combination and probability. It's not a topic that we can do in just 1 or 2 sessions. It's the topic has a spectrum of concepts, right, which we will again get into the depth of it, right. As you know that मैं किसी चीज की गहराई में जाकर के बात करता हूँ, तो वही हम करने वाले हैं with modern maths also. Okay, so fundamental count principle of counting, right. So this topic, which is we commonly say as PNC, actually, we can also say it is a topic of counting methods, right. And the fundamental rule or principle of counting is the base concept from which we then apply it to deal with further problems of in detail, in depth of selection problems and arrangement problems. तो आज हम फंडामेंटल रूल की बात करेंगे. और व्हाट इज दिस रूल? दिस इज वेरी सिंपल. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है, whenever we do a certain set of events one after the other in succession, which comprise taken together a larger outcome. To understand this, for example, I have to go from city A to city B to city C to city D. So going from A to D is the eventual outcome. मुझे A से D जाना था, but बीच में B और C दोनों पड़ते हैं. And let's say there are multiple paths or routes to go between each consecutive cities. Let's say A से B तक जाने के दो तरीके हैं, दो रास्ते जाते हैं. B से C जाने के तीन रास्ते जाते हैं और C से D जाने के चार रास्ते जाते हैं. सो 2 ways, 3 ways, 4 ways, ये इंडिविजुअल वेज हैं. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि ऐसे इस तरह से अगर यू हैव सेवरल सब इवेंट्स कंप्राइजिंग अ होल लार्ज इवेंट, then the total number of ways of achieving that outcome is the product of the number of ways of each sub event, right. इसको इसीलिए एम एन पी रूल भी कहते हैं, मतलब एम इंटू एन इंटू पी, मतलब यू बेसिकली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वेज. बट दिस रूल has a condition: the outcomes of the subsequent events should be independent of each other. Means the outcome of one should not be impacting the outcome of the next event or any other event, right. So as long as that is there, our number of ways of going from A to D via B and C is 2 into 3 into 4, 24 ways, right. So इस तरह से we can, this is just a simple example to understand, and we'll be applying this in many contexts. To take another example, let's say I'm saying I have a fair dice with me. I'm rolling a one dice and I'm tossing a coin simultaneously. How many total combination of outcomes on both the dice and the coin taken together are possible? 6 outcomes for the dice are possible. 2 outcomes for the coin are possible. Heads or tails? 1 to 6. 6 ways, 2 ways, 6 into 2, 12 different outcome combinations are possible. कि head आया, tail आया, और 1 to 6 में से क्या आया, right. So that is what it is, and now we'll be, as I said, getting to see how these basic ideas are used or applied in different kinds of problems, right. All of us should also have a basic understanding of NCR and NPR, right. थोड़ा थोड़ा हम उसको भी शायद आज बीच बीच में थोड़ा बहुत यूज करेंगे. NCR means n factorial over r factorial, n minus r factorial is the number of ways to select r objects out of n distinct objects. NCR, right. जैसे NC0 is 1 always, कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना एक ही तरीका. NC1 is n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के n ways हैं. NC2 is n minus 1 by 2. NC3 is n minus 1, n minus 2 product में divide by 3 factorial, which is 6, and so on, right. And NPR simply n factorial over n minus r factorial.
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे उसको, बट थोड़ा बहुत हो सकता है वो भी यूज़ करें, राइट? So therefore, that is the context to understand the fundamental rule applied in problems. Let's see what kind of questions have been asked. Become aware with all the variety of problem types in this topic, right? With that being the agenda, again let me remind, I'm expecting you to practice with me, right? I'm sure you can try all the questions, right? तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर देखिए, राइट? चलिए, सो मॉडर्न मैथ्स अ न्यू जर्नी स्टार्टिंग विद टुडे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. लेट्स स्टार्ट. Here we go. First question. No, sorry. Okay, so there are 6 tasks and 6 persons. Task 1 cannot be assigned either to person 1 or to person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or person 4. So see, every question of PNC comes with some kind of restrictions and conditions. यहाँ पर restrictions and conditions clearly specified हैं. Task 1 person 1 और person 2 किसी को नहीं मिल सकता है. Task 2 या तो person 3 या फिर person 4 को मिलेगा. तो सबसे पहले टास्क 1 के बारे में मत सोचिए. मतलब देखिए, आपको इसके नंबर ऑफ वेज सोचने हैं, फिर इसके, फिर बाकी सबके. बाकी टास्क 3 से टास्क 6 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो टास्क किसी को भी असाइन हो सकते हैं. So therefore, how many ways the assignment can be done? So first think about task 2, not task 1. Why? जब देखो, ये एक नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है. मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर आप टास्क 1 के नंबर ऑफ वेज पहले डिफाइन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. लेकिन केसेस बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि टास्क 1 को आप क्या कहोगे, 1 और 2 को नहीं दे सकते हैं, तो 3, 4, 5, 6 को दे सकते हैं. अच्छा, अगर आपने टास्क 1 3 या 4 पर्सन को दे दिया तो फिर टास्क 2 के नंबर ऑफ वेज ओनली 1 हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने टास्क 1 पर्सन 5 या 6 को दिया तो टास्क 2 के नंबर ऑफ वेज 2 होंगे. तो डिफरेंट वेज हैं नेक्स्ट इवेंट के, टास्क के, इसलिए केसेस बनाने पड़ जाएंगे. तो आंसर तो आ जाएगा, बट 2 केसेस बना करके ऐड करके आएगा. तो इसलिए केसेस ना बनाने पड़े, तो इसलिए पहले टास्क 2 के बारे में सोच लीजिए कि उसके 2 वेज हैं, राइट? टास्क 2 कैन बी असाइन टू पर्सन 3 और पर्सन 4. हो गया 2 वेज. अब टास्क 1 के बारे में सोचेंगे तो बहुत क्लियर है कि टास्क 1 पर्सन 1 और पर्सन 2 को नहीं जाना था. बिटवीन पर्सन 3 एंड पर्सन 4, वन ऑफ देम इज आल्सो टेकन, ऑलरेडी एंगेज्ड इन टास्क 2. सो 3 पर्संस रिमेन, राइट? पर्सन 5 एंड 6 एंड वन अमंग 3 और 4 जो भी रहता है. So task 1 has now 3 persons who can be selected from. So 3 ways, right? अब उसके बाद जो रिमेनिंग टास्क हमारे बच गए हैं, टास्क राइट 3 to 6. तो अब ये हमारे 4 टास्क हैं जो हमारे 4 पर्सन्स को फर्दर अरेंज होने हैं. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो टास्क 3 कहेगा कि भाई ऑल 4 पर्सन्स आर अवेलेबल, आई हैव 4 वेज. टास्क 4 कहेगा कि आई हैव the remaining 3 persons I can see, I have 3 ways. Task 5 kahega I can see the remaining 2 persons, I have 2 ways. Task 6 kahega I have the last remaining 1 person, I have only one option. So 4 into 3 into 2 into 1, जिसको हम 4 factorial भी कहते हैं. So 2 into 3 into 4 factorial, 2 into 3 6, 6 into 24 144 ways are in total possible to do the assignment of tasks to the persons. ये जो लास्ट में हमने किया है, दैट इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट. इफ यू हैव n objects to be arranged in n locations, in this case it's not arranging objects in locations, it's about assignment. We are assigning, so it's one and the similar thing. We are assigning 4 tasks to 4 persons. So n objects can be arranged amongst n places in n factorial ways, right? N persons can be seated amongst n chairs in n factorial ways. So that is the standard result, comes because of the fundamental counting principle itself, right? तो जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां इन फैक्टोरियल, जहां रिस्ट्रिक्शन है वहां इंडिविजुअली काउंट करेंगे. दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल रूल, राइट? चलिए, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट? लेट्स सी मोर और देखते हैं नेक्स्ट वन. हियर वी गो. In how many ways is it possible to choose a white square and black square on a chessboard so that the squares must not lie in the same row or column? सबने चेसबोर्ड देखा है? नहीं देखा है तो याद दिला देता हूँ चेसबोर्ड क्या होता है. देखिए, चेसबोर्ड सुना सबने है, देखा है? आई एम श्योर देखा है. देखिए, यहाँ पर चेसबोर्ड का पैटर्न क्लियर होना चाहिए. ऑल्टरनेटिवली ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ठीक है? 64 स्क्वायर्स हैं, 8x8 की ग्रिड होती है जिसमें कि आधे व्हाइट आधे ब्लैक. अच्छा, यहाँ पर चॉइस करनी है, एक व्हाइट एक ब्लैक.
बट कंडीशन है दैट द स्क्वायर्स मस्ट नॉट लाई इन द सेम रो और कॉलम. चलिए कर दें सिलेक्ट. पहले व्हाइट स्क्वायर सिलेक्ट होगा. कितने तरीके में होगा? द फर्स्ट स्क्वायर टू बी सिलेक्टेड वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट होगा. अभी तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट जो है वो अब बाद में सोचेंगे. मींस ऑल द 32 व्हाइट स्क्वायर्स आर इनिशियली ओपन टू बी सिलेक्टेड. ठीक है. अब वो व्हाइट स्क्वायर जिस भी रो और जिस भी कॉलम में था, अब उसमें से सिलेक्शन नहीं होगी. मान लीजिए जैसे कि ये आपकी रो थी, राइट. व्हाइट, मैं व्हाइट को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक मीन्स जस्ट पुटिंग अ डॉट टू इंडिकेट इट इज व्हाइट, इट इज ब्लैक. डॉट मीन्स ब्लैक स्क्वायर. अब इसमें रो भी होगी, कॉलम भी होगा. मान लीजिए कहीं ऊपर नीचे जहां तक भी जा रहा है समथिंग, मान लीजिए 1 2 3 4 नीचे भी. ठीक है. तो मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया था, ये वाला व्हाइट स्क्वायर. ठीक है. अब क्या होगा? ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? In this row, and there are 4 black squares. In this column, there are 4 black squares. From the 32 black squares, simply these 8 squares are now not to be selected. यही restriction है, यही constraint है. तो अब जो black square है उसको select करने के ways क्या है? Simply 32 minus 8, 24. For each of the 32 white squares that can be selected, we eliminate the 8 black squares that are there in the same row and column containing that white square. So 24 options for then selecting the black square in succession, one after the other. 32 into 24, which is 768. Ways are there. That's it. Right? बस इतनी सी बात है. सिंपल फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. पहले व्हाइट स्क्वायर सेलेक्ट करो, फिर ब्लैक स्क्वायर सेलेक्ट करो. ये आपके दो इवेंट्स हैं जिसको मिलाकर के टोटल इवेंट है. इसके नंबर ऑफ वेज, फिर इसके नंबर ऑफ वेज. पहला वाला इंडिपेंडेंटली 32 ऑल ऑप्शंस वर अवेलेबल, देन restriction comes in on the black. So all questions of PNC are all about just understanding the constraint, how to satisfy that, how to take care of the constraints. यही चीज होती है, right? ओके. चलिए और देखते हैं, बहुत कुछ है. आई होप यू ट्राइंग विद मी. लेट्स सी नेक्स्ट वन. नाउ आई वुड से अनदर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट, जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट. प्लीज डू ट्राई. So there are 12 towns grouped into 4 zones with 3 towns per zone. Just for a little bit mental understanding, a visual understanding, just I'm depicting. अच्छा ठीक है, ये 4 zones हैं कुछ. There are 12 towns grouped into 4 zones. This is zone A, B, C, D. Just labeling them. कोई कह तो नहीं रहा, मैं ऐसे just आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं. ये कुछ towns हैं, just indicating them ऐसे ऐसे करके कुछ. They are there. ठीक है. It is intended to connect the towns with the telephone lines such that every 2 towns are connected with 3 direct lines if they belong to the same zone and with only 1 direct line. Otherwise मतलब पहले उसने बोला belong to the same zone, तो 3 direct lines. Every 2 towns means every pair of towns within the same zone have 3 lines interconnecting them. और उसके otherwise मतलब बाकी any combination of towns across 2 different zones have to be connected with only 1 direct line. खर्चा पड़ता होगा भाई, ज़्यादा दूरी ज़्यादा है. Right. Within the towns, lot of people talk to each other, so therefore 3 lines because lot of people talking, right, across the towns. I mean, I'm just making a story. How many direct telephone lines are? तो होता है कि आपको simply counting करनी है कि इसमें 3 wires required हैं, lines required हैं, इसमें 1 direct line. So how many combination of towns in each case are there? You have to just focus on that and accordingly count the number of lines. So within each zone, within the zones, how many telephone lines are required? For that, you first of all need to count how many pair of towns are there existing within the zones, right?
How many zones are there? Because for each zone we have to count, and for each zone there will be similar counting because it's the same number of towns in each zone. So there are 4 zones. So 4 into, because first 4 ways to कि हम किस zone की बात कर रहे हैं, into. So we are doing things in succession. First select a zone in 4 ways, then within each zone talk about how many pairs of cities are there. जैसे मान लो कि this is city A1 A2 A3, A1 to A2, A1 to A3, this is A3, and this is A2 to A3. So three pairs of towns are there which need to be connected. So 3 pairs of town, and then into further for each pair of towns 3 lines are required. 4 zones, 3 pairs of towns within each zone, 3 lines per for every 2 towns. 4 into 3 into 3, 4 into 9, 36 lines are required like this, right? And now across the zones, between the zones, 2 towns separated across 2 different zones. Now first we have to select 2 zones. We have 4 zones A, B, C, D. So how many pairs of zones are there? Because first हम 2 जोन की बात करेंगे, फिर हम हर जोन में से एक एक सिटी सिलेक्ट करने की बात करेंगे. It's about selecting 2 cities across 2 different zones. So before the selection of towns comes the selection of the 2 different zones from which the cities are to be selected, right? So A to B, B to D, D to C, C to A to D, and B to C. I have drawn 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 combination or 6 pairs of zones AB, AC, AD, BC, BD, CD. Into for each pair of zones, from the first zone selecting one city, from the second zone selecting another city. Let's say this is A1, A2, A3. Let's say this is B1, B2, B3. So one amongst A1, A2, A3 select that 3 ways. One amongst B1, B2, B3 select that 3 ways. Your selection is done of 2 cities across 2 different zones. For each such pair of cities have one direct line. So into 1 for the number of lines. 6 into 3 into 3, 6 into 9, 54 such direct lines are required. So 36 lines here and 54 lines here. 36 plus 54 is 90. As simple as that. Basic counting method, right? Perfect. So therefore I'm building your basics and I hope you're trying, right? We are counting the number of ways, right? और देखते हैं. चलिए next one. Here we go. Very interesting. This comes with a diagram. Very interesting. Arrows, A, B, C, D, E, F. क्या है ये? देखिए. The figure below shows the network connecting cities A, B, C, D, E, and F. Yes, I can see that. The arrows indicate permissible direction of travel. भाई हर जगह से हर जगह नहीं जा सकते हैं. जैसे A से B जा सकते हैं, A से D जा सकते हैं, A से C डायरेक्ट नहीं जा सकते, B से C जा सकते हैं, A से B से C जा सकते हैं, A to C डायरेक्ट पाथ नहीं है, B से D जा सकते हैं, D से B नहीं जा सकते. ये बड़ी अजीब बात है, बट है तो है. वन वे रूट है. यू मस्ट हैव सीन, राइट? देयर आर सम वन वे रूट्स आल्सो. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ्स फ्रॉम A to F? आपको इवेंचुअली F पर जाना है. नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पाथ्स फिगर आउट करेंगे. एरोज कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं. अच्छा, इसमें कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे अप्लाई करूं भाई? इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ये इवेंट हुआ फिर ये इवेंट हुआ फिर ये इवेंट हुआ. सी द पॉइंट इज द टॉपिक इज काउंटिंग मेथड्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहले 3 क्वेश्चन किए, बहुत प्यार से फंडामेंटल रूल अप्लाई किया. चौथा क्वेश्चन देखा, फंडामेंटल रूल अप्लाई होगा ही नहीं. माय पॉइंट इज ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. ये क्वेश्चन काउंटिंग का है, बट the counting has to be done in a sort of manual way, जिसको कह सकते हैं brute force method. Just list down all the possible paths exhaustively. That's it, right? So counting के कुछ ऐसे भी questions आ सकते हैं इस तरह के, जिसमें कि आपको manually सभी counting को consider करना हो, right? ऐसा भी आ सकता है, राइट? तो बिल्कुल हम इसके लिए तैयार रहेंगे और इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रैटेजी इस तरह से करें कि मतलब एग्जॉस्टिवली सब कुछ काउंट हो, कुछ छूट ना जाए. तो देखिए, सबसे पहले दिख रहा है कि A से B या A से D स्टार्टिंग जर्नी, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 ways.
बट सी इट्स वेरी इंटरलिंक्ड। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, ए से बी करते हैं, फिर ए से डी, मतलब द पॉइंट इज एफ तक जाना है। तो एक वो सभी पाथ्स काउंट कर लेते हैं कि ए से बी पर स्टार्ट करके कैसे कर सकते हैं, फिर ए से डी पर भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वो सभी पाथ्स जो ए से एफ जाते हैं वाया बी, ए टू बी टू सी टू एफ। अच्छा, एक पाथ डायरेक्ट भी है बी टू एफ, आप देख सकते हैं एक एरो डायरेक्टली भी जा रहा है बी टू एफ, सो ए टू बी टू एफ। अच्छा, आप ध्यान से देखिए एक चीज और भी है, आप ए से बी जाएं, बी से सी दोबारा जाएं, लेकिन आप इस एरो को ध्यान से देखें, आप सी से ई जा सकते हैं और फिर ई से एफ भी जा सकते हैं। ए बी सी ई एफ लंबा तरीका है, बट उसने तो सभी डिस्टिंक्ट पाथ पूछे हैं ना, तो सभी जितने लंबे पाथ्स हो कोई उसमें टेंशन नहीं है, राइट। आपको बी टू ई बी एरो दिख रहा है, तो आप ए बी ई एफ भी कर सकते हैं। चलिए, ये वो सभी पाथ्स हैं जिसमें ए से बी गए और बी से एफ गए, बट डी पर नहीं गए। देखिए, एक पाथ ए से बी और फिर बी से डी भी जा रहा है। तो अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं ए टू डी एंड फिर डी से फर्दर काउंट करूंगा। मैं ये समझ रहा हूं कि ए से डी जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं ए से डी जाऊं सीधा, या मैं ए से बी से फिर डी जाऊं। तो दीज आर द टू वेज टू रीच टू डी। अब मैं डी से फर्दर एफ तक जाने की अब काउंटिंग देखता हूं, और फिर उसको यहां से इंटू टू करके ओवरऑल ए टू डी एंड देन फर्दर डी टू एफ कर लूंगा। ए टू डी जाने के दो तरीके, ए बी डी या ए डी डायरेक्ट। फर्दर अब मैं यहां पर इसके आगे की काउंटिंग कर रहा हूं। आफ्टर दिस ऑल द वेज डी टू सी टू एफ, राइट। पीछे जो मेहनत कर चुका हूं वो थोड़ी थोड़ी मदद करेगी कि डी टू सी टू एफ, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि डी टू सी टू ई टू एफ भी हो सकता है, राइट। या फिर डायरेक्टली ये नीचे वाला डी ई एफ भी हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज ऑल। डी से एफ जाने के ये फर्दर थ्री वेज हैं। सो थ्री वेज फ्रॉम डी टू एफ, टू वेज टू ए टू डी एंड देन डी टू एफ। तो ये हमने काउंटिंग रूल यूज किया, टू वेज इंटू थ्री वेज, ये टोटल सिक्स वेज, और ये फोर वेज, फोर एंड सिक्स टोटल 10 वेज आर देयर। एक फिजिकल मैप में आपने फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग को समझा और स्ट्रैटेजिकली एग्जॉस्टिवली काउंटिंग करी। ब्रूट फोर्स मैनुअल काउंटिंग थी, राइट, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरली किया, उसको एकदम हैपहैजर्ड वे में नहीं किया। देखिए, राइट, किस तरह की वैरायटी है, राइट। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, बहुत कुछ है, लेट्स सी। Now, the question might be a little, oh, don't get bogged down by the length of the question. Sometimes the questions explains itself, takes a little bit of a, it takes some words to explain itself clearly. The question is not very difficult, but quite interesting. So please do try this out. फायदा नहीं होगा कि आप जस्ट डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देख लें, आप खुद समझें, एक बार कोशिश करें और फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, there are three cities A, B and C. Each of these cities is connected with the other two cities by at least one direct road. अब अभी तक देखते आ रहे हैं कि जहां भी जरूरत होती लगती है, मैं थोड़ा सा एक मेंटल मैप, एक विजुअल फ्रेमवर्क जरूर ड्रॉ कर लेता हूँ। देयर आर थ्री सिटीज A, B, C, ठीक है। जितना चीजें माइंड में मतलब थोड़ा सा विजुअली रहें सामने, अच्छा है, राइट। ईच ऑफ दीज सिटीज इज कनेक्टेड विद अदर टू सिटीज बाय एट लीस्ट वन डायरेक्ट रोड। सो कुछ पाथ्स A to C होंगे, कुछ पाथ्स A to B होंगे, कुछ पाथ्स B to C होंगे, और तीन ही सिटीज हैं, राइट। तो तीन ही टाइप्स ऑफ पाथ्स होंगे। Triangular system is there. If a traveler wants to go from one city origin to another city destination, चलो बात करते हैं A और B की। One city origin to another city destination, she can do so either by traversing a road connecting the two cities directly, या तो आप A to B directly चले जाओ, or by traversing two roads, the first connecting the origin A to the third city C, and the second connecting the third city to the destination.
राइट, मेक सेंस व्हाट इज सेइंग कि आपको ए से बी जाना है तो आप ए से बी चले जाओ सीधा डायरेक्ट, जो भी पाथ्स हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके, या फिर ए टू सी एंड देन फॉलोड बाय सी टू बी। तो यहाँ पर फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होगा, राइट, कि दिस वेज इनटू दिस वेज, जो भी नंबर ऑफ पाथ्स हैं। हमें नंबर ऑफ पाथ्स नहीं पता, अब उसने कुछ फर्दर नंबर ऑफ कुछ रूट्स दिए हैं 33 23, क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 अननोन्स लेने पड़ेंगे। Let's say there are some x paths from A to C, some y paths from B to C, some z paths, the z number of paths from A to B. Both, it's obviously these are two-way routes, right? Uh, so in all, he's saying there are 33 routes from A to B, including those by C. Similarly, there are 23 routes from B to C, including those by. So we'll now get some kind of equations amongst these variables in terms of x, y, z. So I guess we are expected to solve the 3 variables, and how many roads are there from A to C directly. जो मैंने x लिया है वो x की वैल्यू पूछी हुई है। Clearly x isolation में तो solve होगा नहीं, because equations will be quite interlinked amongst the variables. So let's frame the equations. A to B either go via A to B z ways or plus A to C to B. So x ways followed by y ways, x into y. Number of ways is 33. Quite a non-linear sort of an equation, right? Z plus x into y. तो थोड़ी सी अब algebraic वर्किंग रहेगी, देखते हैं. Similarly, 23 routes from B to C, so B to C y ways, direct ways, and plus B to A to C, Z ways, and then X ways, Z into X. आप समझ रहे हैं कि roads are both two-way roads, right? क्योंकि हम A to B भी जा रहे हैं और फिर B to A भी जा रहे हैं, right? All the things. So this is 23. अब ये क्वेश्चन एल्जेब्रा का नहीं है, नंबर्स का है। जहां पर भी नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो वो क्वेश्चन एल्जेब्रा का नहीं होता है, नंबर फिटिंग का होता है। You have 3 variables, you have 2 equations. This is not, you cannot solve this algebraically. You have to do fit the numbers. You have to figure out a way to insert suitable values of x, y, z, which are integers which satisfy this equation. What will I do? Z plus xy, y plus zx, देखने में लग रहा है कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, इक्वेशंस को क्या करें, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें। देखो ऐसा भी दिख रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, अभी भी प्रोडक्ट बना रहेगा। बट लेकिन एक सेकेंड, होल्ड ऑन, व्हाई डोंट आई ऐड एक्चुअली? सी द थिंग इज, आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन हो रही है। क्यों? सी यू विल गेट y plus z, you will also get from here also x common into y plus z. This is xy plus xz, so x into y plus z. तो एक्चुअली यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब नंबर फिटिंग का है, और नंबर फिटिंग तभी आसानी से हो सकती है जब हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख पाएं, और वो हम कर रहे हैं। दिस इज 56 एंड दिस इज x, दिस इज y plus z कॉमन, and then 1 plus x, y plus z common, 1 plus x, or x plus 1. So y plus z into x plus 1 is 56. अब क्योंकि क्वेश्चन थीटा नहीं है तो मैं ऑप्शंस को यूज करूंगा, राइट? और यहां पर जैसे ये ऑप्शंस x की वैल्यू है, मैं x को सब्स्टिट्यूट करूंगा और चेक करूंगा कि इज इट पॉसिबल, डज इट गिव मी अ वैलिड सॉल्यूशन, इफ यस आई विल मार्क इट, एल्स नॉट। x क्या 6 हो सकता है? Maybe, because 6 plus 1 7 is a factor of 56. क्या x 3 हो सकता है? 3 plus 1 4 is a factor of 56. Maybe, I'm not saying definitely. 5 हो सकता है, 5 plus 1 6 is not a factor of 56. 56 इसका मल्टीपल नहीं है। 10 plus 1 11, 11 is not a multiple of 56. Option C and D you can just quickly rule out by looking at this equation. देखो इन दोनों इक्वेशंस को देख करके नहीं समझ में आएगा, बट ऐड किया और फैक्टराइज करके लिखा तो समझ में आया, राइट? ओके, नाउ between A and B, which is the correct choice? चेक करेंगे कि क्या तीनों वेरिएबल्स की वैलिड विच इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ रही है क्या। x को 6 लेते हैं अगर, तो मींस 7 into 8 is 56, means y plus z is I mean this is 7, so this is 8, so y plus z is 8, right? 7 into 8. Now on the other hand, अगर मैं x को 6 यहाँ डाल दूं तो z plus x is 6, so 6y plus z,
The other is 6y plus z is 33. If I now subtract these two, so z cancels and 5y is therefore 33 minus 8, 25. Valid value in right, positive integer value which I wanted. Y is 5, z comes to be therefore 3, y plus z 8. Yes, that must be the correct choice. I can mark it and move on. Right? Why is 3 not correct? जिस तरह से यहाँ पर इंटीजर सोल्यूशन आया, शायद उसमें नहीं आ रहा होगा, डेफिनेटली नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर आ रहा होता तो फिर आंसर होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आई कैन चेक दिस फॉर यू. एक्स को 3 अगर हम डालें तो this is 3 plus 1 4, 4 into 14 is 56, y plus z is 14, and if x is 3, so here 3y plus z, the other equation is that 3y plus z is 33. You can see for yourself. नहीं आ रहा इंटीजर सोल्यूशन भाई, सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है. Z cancels, but 2y is 19. 33 minus 4. Y cannot be 9.5. 9.5 तरीके नहीं हो सकते हैं. Right? So that's the point. तो फंडामेंटल रूल अप्लाई हुआ बहुत सिंपल वे में, और फिर जो इक्वेशंस हुई उनमें हमने नंबर फिटिंग से आंसर फिगर आउट किया. अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि 3 वेरिएबल्स थे 2 इक्वेशंस में सॉल्व करना था, नॉट अलजेब्रिकली, बाय नंबर फिटिंग. राइट तो देखिए नंबर्स हमने अभी किया है फ्रेश, और कितने सारे क्वेश्चंस हमने नंबर्स मॉड्यूल में किए थे बाय नंबर फिटिंग अप्रोच, कि भाई फिट करना पड़ता है. तो वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं. Right, people? So I hope this was enriching, enlightening. We are learning, we are taking away something from this question. Yes. चलिए और देखते हैं. I hope you are enjoying the session. Let's see. Here we go with the next one. As I told in the last question, take the question on its face value. You will be able to get this one, right? बिल्कुल डूएबल है क्वेश्चन ने, जस्ट अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ चीज़ों को, वो समझिए एंड फिगर आउट. चलिए, सो आई होप यू हैव ट्राइड. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ग्राफ मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस कॉल्ड एजेस. आप ग्राफ को सिंपली बोल दीजिए ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है. पॉइंट्स, लाइंस कॉल्ड एजेस हम ज्योमेट्री में करते हैं. एवरी एज कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ पॉइंट्स. हाँ भाई हाँ. Thus a triangle is a graph with 3 edges and 3 points. हाँ भाई हाँ. 3 sides and 3 vertices. Vertices को पॉइंट्स कह रहा है, राइट. साइड्स को एजेस कह रहा है, और कुछ नहीं है. एक नई चीज उसने बोली, डिग्री ऑफ अ पॉइंट. बस वही बात है, एक चीज नई. डिग्री ऑफ अ पॉइंट इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल इज अ ग्राफ विथ 3 पॉइंट्स ऑफ डिग्री 2 ईच. हाँ भाई हाँ, कोई भी ट्राइंगल बना लो, कहीं से भी बना लो, कैसे भी बना लो, तो every point has a degree of 2 because every point is connected with the 2 edges. ये पॉइंट 2 एजेस से कनेक्टेड है. हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है. ठीक है, ओके. फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ग्राफ विथ 12 पॉइंट्स. ठीक है भाई, कंसीडर कर लेते हैं 12 पॉइंट्स. It is possible to reach any point from any point through a sequence of edges. See, this is the first time he talks of a constraint. Second last sentence. Actually question बस इतना ही है. बाकी उसने अपनी पूरी एजेस, पॉइंट्स और डिग्री ऑफ अ पॉइंट इसको एक्सप्लेन किया था. अब ये कंस्ट्रेंट ये है कि यू शुड बी एबल टू रीच एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ एजेस, नॉट नेसेसरली डायरेक्टली. ही इज सेइंग आप कुछ घूम फिर करके पहुंच जाओ तो भी ठीक है. तो अब क्वेश्चन बेसिकली रेंज ऑफ ई पूछ रहा है. ई इज द नंबर ऑफ एजेस. तो मुझे कितने एजेस चाहिए होंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम. देखो क्वेश्चन 12 पॉइंट्स का है. आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़े कम पॉइंट्स ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो. 4 की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात करते हैं. मिनिमम कितने आपको एजेस चाहिए? 4. 4 मत बोल देना, ध्यान से समझो. इट इज पॉसिबल टू रीच एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट थ्रू सीक्वेंस ऑफ एजेस. आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, मान लें इनको ज्वाइन कर दिया. अभी आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, चलो इनको ज्वाइन कर दो. अभी ये 4th पॉइंट अभी सेक्लूडेड है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, चलो इसको ज्वाइन कर दो. आप इसको ज्वाइन कर दो या इसको ज्वाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कर दो. चलो इसको कर दो या इसको कर दो, इसको कर दो. अब इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. विद 4 पॉइंट्स द मिनिमम दैट यू नीड is not 4 but actually just 3. You don't need to complete the loop.
आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो पूरा सबसे घूम के चले जाएंगे। मिनिमम इज दिस। तो जो 4 पॉइंट्स के साथ है वही 12 पॉइंट्स के साथ भी होगा। अगर मैं यहाँ 6 पॉइंट्स बना लेता मान लो, तो पूरा हेक्सागन कंप्लीट करने की जरूरत थोड़ी है। ए बी सी डी ई एफ है तो ए से बी से सी से डी से ई जोड़ दो, ए से एफ जाने के लिए पूरा चक्कर लगा करके चले जाओ भाई। ठीक है। सो देयरफॉर 11 इज डेफिनेटली द मिनिमम, सो आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी माइट बी द करेक्ट चॉइस। 0 से तो क्या बात बनेगी, एंड नॉट 10 बट 11। अब मैक्सिमम को सोचते हैं, मैक्सिमम क्या करोगे, सबको जोड़ दो भाई। जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं तो ऑल द 4 साइड्स एंड बोथ द 2 डायगोनल्स यू जॉइन देम, सब कुछ जोड़ दो। मीन्स ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पॉइंट्स टू जॉइन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर देयर? So as I said, on a basic level, NCR, NPR, right? Basic clarity is there. 12C2, right? So 12C2 would be the maximum. This is case में 4C2 is 6. We can see that there are 6 maximum edges we can draw. The 4 sides and the 2 diagonals. 4C2 6. 12C2 is the maximum. 12 into 11 by 2. 6 into 11. 66. Right? बस इतनी सी बात थी, क्वेश्चन को समझना था। राइट, चलिए। सो दिस वाज राइट। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कंफर्ट बनाएं। कंफर्ट, राइट। क्वेश्चन की लेंथ से कोई बॉक डाउन होने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आपकी मदद कर रहा होता है, अगर वो ज्यादा लंबा है तो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, राइट। ओके 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 ओके, और देखें और देखें। यस, देखिए, आई एम श्योर यू आर गेटिंग द थिंग्स। दिस इज द फर्स्ट सेशन, और देख हम फर्स्ट सेशन में कितनी डेप्थ में जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई कीजिए। देखिए अभी मैंने अभी पीछे किया था कैट 2001 का सवाल, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। ये देखिए मैं पीछे आता हूँ, ये देखिए 2000, सॉरी, राइट। इसमें सिटीज ए बी सी थी और इसमें पी क्यू आर एस 4 टाउन्स, और बिल्कुल सिमिलर सी चीज है। डायरेक्ट पाथ्स, राइट, डा यहाँ पर 62 वेज, 27 वेज, एंड देन द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन क्यू एंड आर। And this is easier question than the last one, I will tell you. You can try this. So you'll build confidence if you can get this one. Please do try it. I hope you have done. Let's see. So P, Q, R, and S are 4 towns. ठीक है भाई, पिछले 3 टाउन्स थे, अब 4 टाउन्स आ गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायग्राम बना लो। P, okay, one can travel between P and Q along 3 direct paths. ठीक है, I'm just writing the number 3 paths। मतलब 3 लाइंस में बना रहा हूँ, वरना थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पाथ्स होंगे बिटवीन क्यू एंड एस। सो यू कैन सी लॉट ऑफ पाथ्स, डायरेक्ट 4 डायरेक्ट पाथ्स। अगेन आई जस्ट राइट 4। पी एंड आर, अच्छा, पी एंड आर में ऐसे डायगोनल नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा क्रिस क्रॉस अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़ा घूम के आ जाओ इफ यू डोंट माइंड। बात तो एक ही है, ठीक है, बस वो दिखाने का तरीका है। 4 डायरेक्ट पाथ्स, ठीक है, परफेक्ट सो फार। और कहाँ गया? देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन पी एंड एस, तो पी एंड एस को कनेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आई विल नॉट ड्रॉ अ लाइन एंड डू अ क्रॉस, मैं उसको बस ओपन एंडेड छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो क्लियर है अपने माइंड में। वाइल देयर आर फ्यू डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन क्यू एंड आर, तो वो कह रहा है कि कुछ पाथ्स हैं, कितने पाथ्स हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप फिगर आउट करो। वही वो लास्ट में पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ्स बिटवीन क्यू एंड आर इज, तो लेट्स से दैट इज एक्स और ए और बी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। क्या ले, एक्स ले लेते हैं, जो भी आपको पसंद हो। हाँ, और in between R and S2, R and S also there are some paths, y, तो x और y फिगर आउट करने हैं। इस बार 2 ही वेरिएबल्स हैं, राइट। अब देखिए 2 इन्फॉर्मेशंस हैं, 62 27 दिख रहा है, 2 ही वेरिएबल्स हैं। लग रहा है कि नॉर्मल अलजेब्राइक इक्वेशंस फ्रेम होंगी और सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2000 का सवाल, 2024 का सवाल, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड एंड ओल्ड रिपीट्स। मैं आपको सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेवेंट एंड थिंग्स रिपीट, डिकेडल थिंग्स रिपीट। आई हैव सीन दिस नॉट वंस और ट्वाइस, राइट। पैटर्न है कैट एग्जाम का, इसलिए आप जितना डेप्थ में जाएंगे, मैं इसीलिए डेप्थ लेकर के आता हूं आपके लिए, जितनी डेप्थ में जाएंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी टॉपिक पर।
चलिए कहाँ थे हम, कहाँ गया मैं। वन कैन ट्रेवल फ्रॉम पी टू एस इन एग्जैक्टली 62 एस। तो पी टू एस जाने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। डायरेक्ट बात तो कोई भी नहीं है, बट ही इज सेइंग चलो वो सभी जो ऑप्शंस हैं उसको ऐड करके लिखते हैं। पी टू एस डायरेक्ट बात तो नहीं है, आइदर वाई क्यू। तो पी क्यू एस, उसमें तो नंबर ऑफ पाथ्स सारे पता है। पी इंटू क्यू 3 वेज, क्यू टू एस 4 वेज, 3 into 4 12 पाथ्स, राइट। तो पी टू एस पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि पी क्यू एस हैज 3 into 4 12 वेज, और वाई आर, राइट, मतलब पी टू एस वाई आर, पी आर एस ये जो मैंने घूम के बनाया है, पी टू आर 4 वेज, आर टू एस वाई वेज, 4 into y, 4y, और वाया क्यू फॉलोड बाय आर। हाँ भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, ये भी कर सकते हैं। 3 into x into y। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन दिख गई, सामने आ गई, x into y सामने आ गया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं करते हैं, सब कुछ होगा। जब क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन है, आंसर आना ही है, आना है, यूनिक क्या परेशानी है। 4y+3xy 62 - 12 50। यहाँ पर y भी कॉमन लेकर के कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अभी बाद में देखते हैं। दूसरी इक्वेशन फ्रेम करते हैं। वन कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू आर। अब क्यू टू आर पर इक्वेशन लिखते हैं, चलो भाई फटाफट करिए 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 करिए। क्यू टू आर, क्यू टू आर डायरेक्टली है, हाँ, क्यू टू आर एक्स और वाया पी, क्यू टू पी टू आर, है ना। सो 3 × 4 दैट इज 12, 3 into 4 वो पता है, वेल डिफाइंड है। और वाया एस, क्यू टू एस टू आर, 4 into y, 4y इन एग्जैक्टली 27 वेज। फिर से 12 माइनस करके x+4y इज 27 - 12 15 सॉल्व करना है बस, और x की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट पास बिटवीन क्यू एंड आर। चलो भाई, तो नॉन लीनियरिटी पर फोकस करते हैं, उस इक्वेशन पर फोकस करते हैं, उसमें से y कॉमन लेते हैं, ठीक है। y कॉमन लिया तो यहां से आया 3x+4 इज 50। x निकालना है, y को वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्या होगा। यहाँ 4y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, दोनों तरफ मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो कोई टेंशन तो नहीं है। मैं अगर ये कह दूं कि 4y 3x+4 इज 50 × 4 200, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 4, क्योंकि राइट इट्स इजी टू नॉट गेट इनटू फ्रैक्शंस, 4y को 15 - 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, 15 - 6 3x+4 इज 200। क्वाड्रेटिक बनने गई है, या तो खोल करके प्रॉपरली सॉल्व कर लो, या फिर इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो, x की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो पाएगी। x is an integer, 200 must be factorized over here as the product of two natural numbers, because if x is a natural number then 15 - x as well as 3x+4 must be also natural numbers। 15 - x पर सोचना काफी आसान है, because this expression must be a factor of 200 which is less than 15। लेस देन 15 फैक्टर ऑफ 200, 200 इज 25 into 8, पावर्स ऑफ 2 and 5 ये कुछ नहीं है, और नहीं है। 15 से छोटा सबसे पहला कॉमन, पहले से पहला नंबर जो कि 2 5 की पावर से बना है, दैट इज 10 ओनली। 11 12 13 14 तो नहीं है। अगर ये 10 है तो x 5 है। क्या x 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 15 - 5 10। अगर मैं इसको 5 लेता हूं तो 5 × 3 15 + 4 19, 190 आ रहा है, 200 नहीं आ रहा है, राइट। तो थोड़ा सा करीबी मामला था, बट नहीं बैठा बात, तो और पीछे आते हैं, 10 से भी नीचे आते हैं, 9 8 8 पर बात बन सकती है अगर x क्या हो, 15 - 7 8। तो क्या x हम 7 पर इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे? लेट्स सी। लग तो रहा है 15 - 7 8, 7 × 3 21 + 4, यस 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 25 हो गई बात। 18 × 25 200 सेटिस्फाई हो गया, x 7, ठीक है। या तो आप प्रॉपरली इसको एक्सपैंड करके नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे जल्दी से थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से फिगर आउट कर लो। मैं तो यही करता हूँ, राइट। ऑप्शंस भी नहीं होने के बावजूद थोड़ा सा, क्योंकि पता है कि फैक्टराइजेशन के लॉजिक से सारे नहीं ट्राई करने ना, कंटिन्यूअस बेसिस पर 1 2 3 4 थोड़ी ट्राई करना है, क्योंकि 200 के फैक्टर बनना चाहिए वो। तो हम फिर से नंबर के लॉजिक पर आ रहे हैं, राइट राइट पीपल। तो देखिए, मैं जो मैसेज ले रहा हूँ, लेकर के आया हूँ, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। डेप्थ में जाओ, डेप्थ में जाओ, टॉपिक, हर टॉपिक क्वांट का, राइट, उसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और मैं सारे स्पेक्ट्रम को आपके साथ में लेकर के आना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे बेसिक सी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, x into y 4 into y, उस पर इक्वेशंस फ्रेम करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, एलजेब्रा नहीं है,
अलजेब्रा भी हो सकता है या नंबर फिटिंग भी हो सकता है। राइट राइट पीपल, और देखते हैं, बात हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, CAT 2012। Very interesting question of CAT 2012. I would like you to make some effort with this question, right? करेंगे समझेंगे तो मजा आएगा, right? चलिए, I hope you have. Let's see क्या कह रहा है क्वेश्चन। Letters of the word attract are written on cards and are kept on a table. Fine. मतलब ATTRACT 7 letters। ए रिपीट हो रहा है पर दो अलग अलग होंगे, राइट। उसने क्लियरली बोला है लेटर्स ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट आर रिटन ऑन कार्ड्स एंड आर केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है। Manish is asked to lift 3 cards at a time, write all possible combinations of the 3 letters on a piece of paper and then replace the 3 cards। देखिए उसने पहले तो बोला write all possible combinations। कॉम्बिनेशन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन का है, क्योंकि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन लोगों को समझ में आता है। अच्छा, परमिटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन देखिए जब आप एक उसको एक पीस ऑफ पेपर पर लिखेंगे तो ऑर्डर मैटर करेगा। मतलब उसने अगर ATT सिलेक्ट किया मान लो, तो ATT लिखा या TTA लिखा या TAT लिखा, वो मैटर करता है, वो डिफरेंट आउटकम्स है, राइट? ठीक है। Now, so question is what? The exercise ends when all possible combinations of letters are exhausted. Then he is asked to strike out all words in his list which look the same when seen in a mirror. ये मिरर कहाँ से आ गया भाई? यहीं पर तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको ये सोचना है कि बेसिकली क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है कि अट्रैक्ट के 3 लेटर्स से जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो कि मिरर में सेम दिखेंगे। देखिए पहले ये समझिए कि लेटर खुद में मिरर, अपना ही मिरर इमेज होना चाहिए। मतलब उसको फ्लिप करें तो वो वही बन जाए जो वो है। ए को फ्लिप करेंगे तो ए ही बनेगा। ए इज इट्स ओन मिरर इमेज। ए रिपीट्स ट्वाइस ऑल्सो। टी ऑल्सो इज इट्स ओन मिरर इमेज। टी भी खुद अपनी मिरर इमेज है। टी को ऐसे फ्लिप करोगे तो टी ही रहेगा। इट इज मिरर इमेज सिमेट्रिक, राइट? टी एंड ए आर mirror image of each other, but there are 3 T's, there are 2 A's, right? But R is not mirror image of itself. उसका mirror image कुछ ऐसा बनेगा, राइट? तो वो मिरर में R नहीं दिखेगा, A मिरर में A ही दिखेगा, T मिरर में T ही दिखेगा। So R, which is a single letter, it is not mirror image of itself. Neither is C. C, you can understand, ऐसा हो जाएगा, राइट? है ना? तो ये नहीं है मिरर इमेज अपनी, ये दोनों हैं। अब इनसे लेकर के वर्ड्स कितने बन सकते हैं? 3 लेटर वर्ड्स जो कि मिरर में सेम दिखेंगे। देखिए ए और टी से ही बन सकते हैं, ए और टी रिपीट भी हो सकते हैं। टी तो खुद में 3 बार ही मौजूद है, तो एक तो वर्ड बनेगा टी टी टी, वो अपना खुद ही मिरर इमेज होगा। अच्छा, ए तो हो नहीं सकता। अब ए और टी की कॉम्बिनेशन में क्या क्या बन सकता है? अब देखिए ए टी, ये वर्ड अपने आप में जब मिरर में दिखेगा तो फ्लिप होकर के टी ए दिखेगा। तो although A and T are their own mirror images, but this word in itself when flipped around, क्योंकि वो रिवर्स में पढ़ा जाएगा, रिवर्स दिखेगा, तो वो TAA दिखेगा। तो इसलिए ये वर्ड में चाहे हर लेटर अपने आप में मिरर इमेज है खुद का, लेकिन दिस वर्ड ऑन इट्स होल इज नॉट मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ। सो समझ में आ रहा है कि वर्ड खुद में पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, राइट? खुद में अपना रिवर्स वे में पढ़ने पर सेम दिखना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो मिरर इमेज बन सकती है क्योंकि एज भी हैं, टीज भी हैं, तो TAT बन सकता है या ATA बन सकता है। तो ये 3 वर्ड जो हैं वो मिरर में सेम दिखेंगे। पहले
हमने जो वर्ड्स हमारे नॉन फेवरेबल हैं पहले उनको ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेन काउंटिंग पर आते हैं। ऑल द पॉसिबल लेटर्स, हाउ मेनी टोटल लेटर्स आर पॉसिबल। देखिए, एक तो ये लेटर बनेगा जिसमें कि सारे लेटर सेम है, एक तो वो टाइप का एक ही वर्ड है, तो वो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। अब हम उसके अलावा बाकी काउंटिंग करते हैं। भाई दो ही बातें बचती हैं, या तो ये हो सकता है कि टू लेटर्स आर द सेम एंड द थर्ड इज अ डिफरेंट वन, राइट। एक तो एक केस बनेगा, या फिर दूसरा केस बनेगा कि ऑल द थ्री लेटर्स आर डिफरेंट, राइट। सो टू लेटर्स सेम एंड थ्री लेटर्स डिफरेंट, तो वी हैव टू सेलेक्ट and then arrange. How many ways you can select this group of letters, right? Two ways to select the repeated letter, either A or T. Two ways to select the repeated letter, either A or T. Take 2A or 2T, followed by selecting the third letter. You have four letters in total, T, A, R, C, four different types of letters. So from four letters, one letter is already selected. The third letter can be selected. The second letter, which the third letter, which is the different one, therefore can be selected in three ways from the remaining three words, right? जैसे आपने मान लो ए सिलेक्ट कर लिया, अब ये थोड़ी कि आप टी सिलेक्ट कर नहीं सकते हो, टी रिपीटेड है, लेकिन आप टी को एक बार सिलेक्ट करके एक बार कर तो सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी है, राइट। सो यू कैन सिलेक्ट ए टी, राइट। So two ways for repeated letter, three ways for the third different letter. Now comes to their arrangement. मान लो आपने जैसे कुछ भी ए आर सेलेक्ट कर लिया था, तो क्या क्या हो सकता है अरेंजमेंट, क्या क्या हो सकता है अरेंजमेंट मैटर्स, ए आर या आर ए या ए आर ए. So three ways for this arrangement, right? I mean, because there's the repetition, so just three ways, not three factorial ways, right? So 2 into 3 into 3, 2 into 9, 18 words are there. इसमें ये TAT, ATA भी इंक्लूडेड होंगे, वो हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो एक्चुअली 18 माइनस 2 16 बचेंगे जो हमारे एक्चुअली में हमको लेने हैं, राइट। इसमें ही AT और TAT आया होगा, वो हमने रिमूव कर दिया, TTT हमने पहले ही कंसीडर नहीं किया। अब ऑल थ्री लेटर्स डिफरेंट, दैट विल बी वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट, ऑल थ्री लेटर्स डिफरेंट, सो सिंपली 4P3 ना, चार लेटर्स में से थ्री लेटर्स सिलेक्ट करके उनको थ्री प्लेसेस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, बिकॉज वी हैव फोर डिफरेंट लेटर्स टाइप्स TARC 4P3, या आप ये भी कह सकते थे 4C3, चार में से तीन सिलेक्ट किया और फिर उनको फर्दर अरेंज कर दिया। सो द पॉइंट इज this is actually a basic question of arrangement, right? And what I'm discussing in any question of arrangement is not arrangement. Arrangement is a selection of, first selection is required. For arrangement, the preceding process you should never forget selection. आप देखिए मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 2 into 3 यहाँ तक हमने सिलेक्शन किया है, फिर into 3 हमने अरेंजमेंट किया है, सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज into अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर भी यही है, फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। 4C3 into 3 फैक्टोरियल, जिसको हम 4P3 भी कहते हैं। 4C3 is 4, 3 factorial is 6, 4 into 6 24 या 4 factorial, 24 plus 16 40, right? Okay people, so therefore I hope you enjoyed, I hope you are taking away the learnings, right? So जैसे कि मैंने कहा था, हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं, राइट। पीएनसी पर क्वेश्चंस चाहे एक या दो ही आते हैं, राइट, बट वो एक या दो क्वेश्चन भी आपको पता है ना कि एक एक क्वेश्चन जो है आपकी परसेंटाइल को कहाँ से कहाँ लेकर के जाता है, राइट। सो देयरफॉर अच्छा रहेगा कि हम इस पर भी पकड़ बनाएं और वो एक दो क्वेश्चंस के लिए भी फाइट करें और उसको मतलब उस पर हमारी स्ट्रांग होल्ड हो, राइट। So that's my wish, and that is what I right, I'm trying that you reach there, right? So thank you, I'll see you once again, right, with the next one. Until then, take care, all the best.